we continue with what we were focusing over the last 2 weeks. हम पिछले 2 हफ्ते से जिन चीज़ों के ऊपर मनन कर रहे थे उन्हीं बातों के ऊपर हम मनन कर रहे हैं. Again, the title of the sermon is Pray for a Spirit of Wisdom and of Revelation. जो प्रचार का शीर्षक है वो ये है कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के लिए प्रार्थना करो. Let us just read verse 18 and 19 again before I proceed. 18 और 19वीं आयत को एक बार हम पढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार. Having the eyes of your heart enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who according to the working of his great might. Paul prays that the Ephesians will receive a spirit of wisdom and of revelation. पौलोस प्रचार करता है कि एफेसियों के विश्वासी वो परमेश्वर से ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को पाए. And when they receive it, they will come to know 3 things. और जब वो उस आत्मा को पाते हैं तो वो 3 बातों को जानेंगे. They come to know about 3 things. 1 is the hope of God's call. पहली बात जो वो जानेंगे वो है परमेश्वर के बुलाहट की आशा क्या है. Second, the wealth of God's glorious inheritance in the saints. दूसरी बात है पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. Third, the surpassing greatness of God's power toward us who believe. विश्वासियों के प्रति परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है. And knowing these 3 things will transform their lives. और इन 3 बातों को जानने से उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा. We looked at the first point last time. हमने पहले जो बात है उसको हमने पिछली बार हमने सीखा. Today we will look at the second point. हम दूसरे जो बात है उसको हम आज देखेंगे. Now Paul wants the Ephesians to have a spirit of wisdom and of revelation so that they will come to know the wealth of God's glorious inheritance in the saints. पौलोस चाहता है कि एफेसियों के लोग ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को पाए ताकि वो जाने कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. The emphasis here is on knowing that wealth. जो जोर डाला जा रहा है यहां पर वो इस बात पर डाला जा रहा है कि आप उस धन को पहचानो, वो धन के बारे में जानो. But let us first try to understand what is this glorious inheritance that he is talking about. हम पहले उस बात को जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये मिरास की महिमा या महिमामय मिरास क्या है. महिमामय मिरास क्या है. Whose inheritance are we talking about here? यहां पर हम किसके मिरास के बारे में बात कर रहे हैं. Now some scholars say that Paul is talking about God's inheritance. कुछ जो बाइबल के पंडित हैं वो बोलते हैं कि पौलुस यहां पर परमेश्वर के मिरास की बात कर रहा है. God is the one who receives this inheritance. वो बोलते हैं कि परमेश्वर जो है इस मिरास को पाते हैं because it is written his inheritance, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है कि उसकी मिरास. And the saints are his inheritance. और विश्वासी उसके मिरास है. Now indeed there is such an idea in the Bible where God's people being God's inheritance. बाइबल के अंदर ये सोच है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मिरास है. But I don't think that we are talking in that sense here. लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम
उस बात को यहां पर कहा जा रहा है. When Paul says his glorious inheritance, जब पौलुस बोलता है कि उसके मिरास की महिमा, it certainly means that the inheritance belongs to God now. उसका मतलब है कि बिल्कुल ये मिरास जो है परमेश्वर की संपत्ति है. But we, his children, the saints, will be the recipients of that inheritance. लेकिन हम उसके बच्चे, हम पवित्र लोग उसके मिरास को पाएंगे. Look at the other 2 points which Paul mentions in verse 18 and 19. वो दूसरे 2 बातों को भी आप पढ़े जो 18 और 19 में कहा जा रहा है. In verse 18 he talks about God's calling. 18वें आयत में वो परमेश्वर के बुलाहट के बारे में बात करता है. The calling is from God, but we are the recipients of that calling. वो बुलाहट परमेश्वर की ओर से है, लेकिन वो बुलाहट को हम पाते हैं. In verse 19 he talks about God's power. The power is from God, but we receive that power. यहां पर 19वें आयत में परमेश्वर के सामर्थ के बारे में बोला जा रहा है, पर यह सामर्थ परमेश्वर की ओर से है, लेकिन हम उस सामर्थ को पाते हैं. Not only that, in the context Paul talks about, जिस संदर्भ में पौलुस बात कर रहा है, वो in verse 14 he talks about our inheritance. आप संदर्भ में देखोगे तो 14वें आयत में वो हमारे मिरास की बात करता है. And he uses a very similar sentence in Colossians chapter 1 verse 12. और ऐसे ही कुछ पदों का इस्तेमाल वो कोलोसियों के पहले अध्याय 12वें आयत में भी करता है, where the inheritance is shown to be shared by the saints. कोलोसियों के पहले अध्याय 12वें आयत में यह बोला जा रहा है कि पवित्र लोग मिरास में सहभागी होते हैं. So it is not God who shares this inheritance, it is the saints who share this inheritance. तो परमेश्वर सहभागी नहीं होता है, विश्वासी या पवित्र लोग इस मिरास में भागी होते हैं. So the inheritance is certainly from God, but for the saints. ये जो मिरास है वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन ये पवित्र लोगों की मिरास है. So what is an inheritance? एक मिरास क्या होता है? The wealth which parents or older generations want to pass down to their children or descendants in the future is called an inheritance. जब माता पिता या पुरानी पीढ़ी अपने बच्चों को या वंशजों को भविष्य में अपने धन को सौंपती है, उसको मिरास कहा जाता है. But that does not mean that the children are not already enjoying this inheritance. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे आज उस मिरास में भागी नहीं हैं. They are, बल्कि बच्चे उस मिरास के में भाग ले रहे हैं. When they live in their parents' house, use their resources, in a way they are already enjoying it. जब बच्चे अपने माता पिता के घर पर रहते हैं, उनके साधनों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो मिरास का अनुभव तो कर रहे हैं आज से ही. But it will belong to them only in the future. लेकिन ये उनका होगा कब? भविष्य में. आज उनका नहीं है. What does that tell us about God's inheritance here in verse 18? तो 18वें आयत में परमेश्वर के मिरास के बारे में क्या कहता है? See, once we were not the children of God. देखिए, हम पहले परमेश्वर के बच्चे नहीं थे. We were sinners outside the household of God. हम पापी थे जो परमेश्वर के घराने के बाहर थे. But we became His adopted children through faith in His Son Jesus Christ. लेकिन हम उसके लेपालक पुत्र पुत्री बने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा. And God had planned this from all eternity. लेकिन अनंतता से परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई थी. I want you to read with me Ephesians chapter 1 and verse 5. एफेसियों का पहला अध्याय 5वें आयत को हम पढ़ेंगे. वहां लिखा है,
और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. And when we became the children of God, और जब हम परमेश्वर के बच्चे हो गए, उसके ले पालक पुत्री हो गए, we began to enjoy God's inheritance. हमने परमेश्वर के मिरास का अनुभव करना शुरू कर दिया है. But it does not belong to us fully. लेकिन वो हमारा हुआ नहीं है पूरी तरीके से. That inheritance is called redemption. और वो जो मिरास है वो परमेश्वर का छुटकारा है. And that's the full redemption that we have in Christ Jesus. We enjoy it today in the form of redemption from sin. हम उसका अनुभव करते हैं आज पाप से छुटकारे के रूप में. That means we have been liberated from sin. हमने पापों से मुक्ति पाई है. We are no more captives to sin. हम पाप के दासत्व में नहीं हैं. Sin has no power over us. पाप का अब हमारे ऊपर कोई सामर्थ्य रह नहीं गया है. That is why in verse 7 Paul says, in him we have redemption through his blood. उसले 7वें आयत में बोलता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. Now the phrase there we have, वहां पे जो पदों का इस्तेमाल किया गया है हमें मिला है, means that there is a current aspect to this redemption. उसका मतलब है कि वर्तमान में हम इस छुटकारे का अनुभव कर रहे हैं. But then in verse 14 he says that God has given us the Holy Spirit towards the redemption of God's own possession. वो 14वें आयत में बोलता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है. सो छुटकारे के लिए. सो द फ्रेज टुवर्ड्स द रिडेम्पशन मीन्स दैट देयर इज ऑल्सो अ फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ दिस रिडेम्पशन. यहां पर जो पदों का इस्तेमाल किया जा रहा है छुटकारे के लिए, वो इस बात को दर्शाता है कि इस छुटकारे का एक भावी पहलू भी है. Although we have been liberated from sin, हम पाप से मुक्त हो चुके हैं, we are still subject to the consequence of sin and that is death. लेकिन फिर भी हम मृत्यु के पाप के परिणामों के अधीन हैं जिसको हम मृत्यु कहते हैं. Our bodies are decaying and one day all of us will die. हमारी जो शरीर है वो हर दिन भ्रष्ट हो रहा है और एक दिन हम सब मृत्यु को पाएंगे. But God will redeem us from that too. लेकिन परमेश्वर हमें उससे भी मुक्ति दिलाएगा. But God will redeem us. And I want you to read Romans chapter 8 and verse 11. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियो का 8वां अध्याय और 11वां आयत पढ़े. Romans chapter 8 and verse 11. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Our dead bodies will be resurrected from death by the Holy Spirit. हमारे नाश्वर शरीरों को पवित्र आत्मा जिलाएगा. And our redemption will be fulfilled. और उस दिन हमारा जो छुटकारा है वो पूर्ण होगा उस दिन.
That is why verse 14 says that the Holy Spirit is given towards the redemption of God's own possession. उसीलिए 14वीं आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए दिया गया है. That is the day when we will fully possess our inheritance. और वो दिन होगा जब हम हमारी मिरास को अपना बना लेंगे, यानी वो हमारा हो जाएगा. That is why verse 14 also says that the Holy Spirit is a pledge of our inheritance, or in other words, a first installment or down payment to the full redemption. उसीलिए पवित्र आत्मा को यहां पर क्या कहा गया है? वो हमारे मिरास का बयाना है. बयाना का मतलब है पहला इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट, यानी वो आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी दिलाएगा. So the second installment is yet to come. Last time we had learnt about the hope of God's calling. हमने पिछली बार परमेश्वर के बुलाहट की आशा को समझा था. That hope is our full redemption. और वो आशा कुछ और नहीं पर हमारा पूर्ण छुटकारा है. Which is also our inheritance, और वही हमारी मिरास भी है. Last time we also learned that our hope is a heavenly hope. पिछली बार हमने यह भी जाना कि हमारा जो आशा है वो एक स्वर्गीय आशा है. कोलोसियों के पहले अध्याय 5वें आयत में यह कहा गया था, हमारी आशा की हुई वस्तु स्वर्ग में रखी गई है. You know, in Colossians chapter 1 verse 5 we had read that it is a hope laid up for you in heaven. Now Peter replaces this word hope with inheritance. लेकिन पतरस इस शब्द को, आशा को बदलकर मिरास कर देता है. Where do you find that? 1 Peter chapter 1 and verse 4. पहले पतरस पहले अध्याय 4थे आयत में लिखा है, an inheritance is reserved for you in heaven. वहां पर लिखा है कि एक मिरास तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है. In heaven we will be people who are fully redeemed. स्वर्ग में हम पूर्ण छुटकारे पाए हुए लोग होंगे. From sin and from death. सिर्फ पाप से छुटकारा नहीं, लेकिन मृत्यु से भी हमने छुटकारा पाया होगा. That is our inheritance. वो हमारी मिरास है. Our hope is to achieve that inheritance. और हमारी आशा यह है कि हम उस मिरास को पाए. Let me just carefully read 1 Peter chapter 1 and verse 3 and 4 for you. That's okay. So पहला पतरस पहला अध्याय और तीसरा और चौथा आयत. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Verse 3 says that God has given us a living hope through the resurrection of Jesus Christ. तीसरा आयत कहता है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा एक जीवित आशा दी है. The hope that just as God raised Jesus from the dead through the Holy Spirit, वो आशा कि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया, he will also resurrect our dead bodies from the dead through the same Holy Spirit, कि वो हमारे नाश्वर शरीरों को भी पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाएगा. And verse 4 says that that living hope is to obtain an inheritance. और वो कहता है कि वो जीवित आशा ये है कि हम उस मिरास को पाए
जो स्वर्ग में रखी गई है। Abraham's life is a picture of this great reality. अब्राहम का जो जीवन है इस बड़े सत्य का एक चित्र हमें प्रस्तुत करता है। The author of Hebrews says in chapter 11 and verse 8 and 9, let's just go there. इब्रानियों का 11वां अध्याय 8 और 9 में देखो क्या लिखा है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। It says, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. Now God had called Abraham to possess a land as an inheritance. परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था कि एक जगह वो मिरास में पाए। God had promised that he will give it as an inheritance to him. परमेश्वर ने उसको बोला था कि ये जो जगह है उसको मिरास में मिलेगी। He and his sons Isaac and Jacob had also received the same promise. उसको और उसके दोनों बच्चों को यानी इसहाक को और याकूब को उन्होंने भी इसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर से पाई थी। And they lived on that promised inheritance. और उन्होंने उस मिरास पर जिया, वो वहां पर रहते थे। But they lived like aliens, like foreigners living in tents. लेकिन वो वहां पर परदेसी के समान तंबुओं में रहते थे। They never owned that land. वो जगह कभी उनकी हुई नहीं। Abraham died before he got that inheritance. इब्राहिम मर गया उस मिरास को प्राप्त करने से पहले। But his hope is on something better. लेकिन उसकी जो आशा थी एक बेहतर मिरास के लिए थी। Verse 10 says, 10वां आयत कहता है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। It says, for he was looking to the city that has foundations, whose designer and builder is God. He will receive his inheritance in the future. अब्राहम भी अपना मिरास भविष्य में पाएगा। Similarly, God has given us the promise of full redemption, and that will be our inheritance. परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को प्रतिज्ञा की, उसने भी हमें एक मिरास प्रतिज्ञा में दी है। But like Abraham, in this life we will not receive it. लेकिन इस जीवन में हम इस अब्राहम की तरह उस प्रतिज्ञा को पाएंगे नहीं। Like Abraham tasted the fruits of the promised land by living like an alien, like a foreigner. जैसे अब्राहम ने एक परदेसी के समान वहां रहकर उस प्रतिज्ञा के देश के फलों को उसने खाया। We also experience this redemption here on earth in the form of liberation from sin. हम भी इस मिरास में रहकर यहां पर हम उस मिरास का अनुभव करते हैं। किस रूप से? पाप से छुटकारा के रूप में। Sin has no more power over us. पाप का हमारे ऊपर अब कोई सामर्थ्य नहीं है। But our hope is in something even more better. लेकिन हमारी आशा इससे भी बढ़कर है। Our hope is for full redemption in heaven. हमारी आशा उस पूर्ण छुटकारे के लिए है जो हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा। When death also will have no power over us. जहां पर मृत्यु का भी हमारे ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं होगा। Our inheritance is both spiritual
एंड फिजिकल लिबरेशन। हमारी जो मिरास है वो सिर्फ एक आत्मिक छुटकारा नहीं, लेकिन एक शारीरिक मुक्ति भी है। Along with us, Abraham will also receive this great inheritance. हमारे साथ अब्राहम भी उसी मिरास को पाएगा। And we read about this full redemption in Revelation chapter 21 and verse 2 to 4. हम इस पूर्ण छुटकारे को प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय 2 से 4 में हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे। And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride atoned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Now look at this. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away. Now Paul calls this inheritance a glorious inheritance. पौलुस इस मिरास को एक महिमामय मिरास कहता है। Why does he call it glorious? वो उसको महिमामय क्यों बताता है? The very first time Paul uses this word glory in this book in Ephesians is in chapter 1 and verse 6. जब पौलुस पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल करता है महिमा का, वो है एफेसियों के पहले अध्याय 6वें आयत में, where he says that God predestined us to adopt us as his children through Jesus Christ. Now note, to the praise of the glory of his grace. वहां पर वो बोलता है कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। फिर ध्यान दीजिए कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। We were sinful people. हम पापमय लोग थे। Not worthy to become God's children. हम ये योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के ले पालक बच्चे बने। But he sent his son Jesus to die on the cross for our sins. लेकिन उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरे, so that through his sacrifice we would become holy and blameless. ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। Not only did he make us his children, he also gave us a heavenly inheritance. उसने सिर्फ हमको बच्चे नहीं बनाया, लेकिन एक स्वर्गीय मिरास को भी हमें दिया। He has promised full redemption in Christ. उसने पूर्ण छुटकारे की प्रतिज्ञा की है यीशु मसीह में। Now that is called grace, और इसको हम अनुग्रह कहते हैं। Grace means giving something which the other person does not deserve. अनुग्रह का मतलब है हम कुछ ऐसा देते हैं जिसके योग्य वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है। God gave us grace to show us his glory. परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह इसलिए दिया ताकि उस अनुग्रह के द्वारा हम उसकी महिमा को देख पाए। In order to show his glory to Moses,
God passed before him and proclaimed something like this. जब वो मूसा को अपनी महिमा दिखाना चाहता था तो वो परमेश्वर उसके सामने से होकर ये प्रचार करता है. He says, this is how he shows his glory. He says, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression and sin. वो बोलता है यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है. Because of his grace we have this inheritance. उसके अनुग्रह के द्वारा हमने इस मिरास को पाया है. And we see his glory in his grace. और हम इस अनुग्रह के अंदर हम उसके महिमा को देखते हैं. That is why Paul calls it a glorious inheritance. उसीलिए पौलुस इसको एक महिमामय मिरास कहता है. We see the glory of God in our full redemption. हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं हमारे पूर्ण छुटकारे के अंदर. And Paul mentioned the same thing in Ephesians chapter 1 and verse 14. और पौलुस ने उसी बात को 14वें आयत में भी कहा था. एक बार उसको पढ़ लेते हैं. Let's read that. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है. देखिए फिर क्या लिखा है कि उसकी महिमा की स्तुति हो. It says, Holy Spirit is a guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. Now Paul is praying that the Ephesians might receive a spirit of wisdom and of revelation. यहां पर पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना यह कर रहा है कि एफेसियों के लोग ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को पाए, so that they can come to know the wealth of God's glorious inheritance in the saints. वो बोलता है ताकि तुम जानो कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. The word wealth is also translated as riches. वहां पर वो जो शब्द धन है उसको आप उसका अनुवाद आप संपत्ति भी कर सकते हो. And both these terms are used to define something that is in plentiful supply. इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल तब होता है जब किसी वस्तु के बारे में हम बोलते हैं कि इसका बहुत ज्यादा सप्लाई है, कोई कमी नहीं है. There is no lack of this. Paul is saying that God's glorious inheritance is in plentiful supply. पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की महिमामय मिरास जो आप पाते हो उसके सप्लाई की कोई कमी नहीं है. What does that mean? उसका मतलब क्या है? Let us go back to 1 Peter chapter 1 and verse 4. हम वापस पहले पत्रस और पहले अध्याय और चौथे आयत को हम देखेंगे. There are 3 qualities of our glorious inheritance in heaven. हमारे जो स्वर्ग में रखे गए महिमामय मिरास के 3 विशेषताएं हैं. फर्स्ट, इट इज imperishable. पहला चीज, ये अविनाशी मिरास है. Imperishable means it is immune to any kind of corruption and death. इसका मतलब है किसी भी प्रकार की भ्रष्टता और नाश से मुक्त है ये मिरास. Last time we had learned that we will receive an imperishable body. हमने पिछली बार हमने पढ़ा था कि हम एक अविनाशी शरीर को पाएंगे at his second coming, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. That means we will not experience any form of spiritual or physical corruption. उसका मतलब है कि हम किसी भी प्रकार की आत्मिक या शारीरिक भ्रष्टता का हम अनुभव नहीं करेंगे. Death is out of the question.
मृत्यु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. Rather life and vitality will be in abundant supply. बल्कि जीवन और उत्साह भरपूरी से आपको मिलता रहेगा. Our redemption will endure forever. हमारा जो पूर्ण छुटकारा है वो हमेशा के लिए बना रहेगा. That is why in Hebrews chapter 9 verse 15 he calls it an eternal inheritance. उसीलिए वो इब्रानी के 9वें अध्याय 15वें आयत में अनंत मिरास कहता है उसको. The second is the second characteristic of our inheritance is it is undefiled. हमारे मिरास का दूसरी विशेषता यह है कि वो निर्मल है. It will be pure. वो हमेशा शुद्ध रहेगा. It will not be contaminated. वहां पर कोई चीज उसे दूषित नहीं करेगी. In heaven, there will be no presence of sin or any consequence of sin. स्वर्ग में न पाप होगा, न पाप के कोई परिणाम आपको वहां पर दिखेंगे. As we read in Revelation, there will be no longer any mourning or crying or pain. जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, न वहां पर शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा होगी. And the third thing he says is, तीसरी विशेषता जो वो बोलता है, it will not fade away. तीसरी विशेषता ये है कि ये अजर है. Meaning it will not lose its pristine quality or character. उसका मतलब है कि वो उसके आरंभिक गुणों को कभी खोएगा नहीं. Our quality of life in heaven will never lose its initial quality. हमारे जो स्वर्ग में जो हमारा जो जीवन है उसकी जो दशा है वो कभी बदलती नहीं है, न घटती है वहां पर. So Paul is saying that in heaven there will be so much supply of life and vitality that there cannot be any corruption and death. पौलुस बोलता है कि स्वर्ग में आपके लिए इतना जीवन और उत्साह होगा कि वहां पर भ्रष्टता और मृत्यु का सवाल ही पैदा नहीं होता है. He says that there will be such a supply of purity that sin and its consequences cannot invade there. वो बोलता है कि शुद्धता, पवित्रता का इतना भरपूर सप्लाई होगा कि वहां पर आप ना पाप का जो वेतन है आप वहां पर देखोगे. And these qualities will be in such supply that there will be no change in our heavenly status. और इसको इतनी भरपूरी से दिया जाता है कि आपकी जो वहां पर अस्तित्व है उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, कोई घटाव नहीं आ सकता है. And because of such an abundant supply of these qualities, इन विशेषताओं का इतना abundant supply है, Paul uses the word wealth or riches for our glorious inheritance in heaven. उसलिए पौलुस यहां पर स्वर्ग में रखे गए महिमा मिरास के लिए धन शब्द का इस्तेमाल करता है. धन या भरपूरी. When you come to know the riches of God's glorious inheritance in the saints, our life becomes purposeful. जब हम जान लेते हैं कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है. Like पौलुस की तरह. Let's see what Paul says in 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 20, the first part of verse 26. हम देखते हैं कि पहले कोरिन्थियों के 9वें अध्याय और उसके 25 और 26वें आयत में 26वें आयत के पहले भाग तक वो क्या बोलता है. वहां पर बोलता है, हरेक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं. It says, every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath.
but we an imperishable one. So I do not run aimlessly. वहां पर the word let me just, Paul says in verse 25 that athletes undergo strict dietary and training discipline. पौलुस बोलता है कि पहलवान लोग क्या करते हैं, वो कड़े अनुशासन का पालन करते हैं. And for what? और किसके लिए करते हैं? A wreath which in those days was made out of leaves. और वो ऐसे मुकुट पाने के लिए करते थे जो उन दिनों में पत्तों से बनाया जाता था. In a few days it perishes. कुछ ही दिनों में वो सड़ जाता था. But he says that the Christian race offers us an imperishable reward. पौलुस बोलता है लेकिन एक मसीही की दौड़ के अंत में हम एक अविनाशी मुकुट को प्राप्त करते हैं. That is why he runs with an aim. इसलिए वो लक्ष्य के साथ दौड़ता है. And the aim is to achieve that imperishable reward. और उसका लक्ष्य ये है कि वो अविनाशी मुकुट को वो प्राप्त करे. How did Paul show the sense of purpose in his life? और पौलुस इस उद्देश्य को किस तरह दिखाता है? By fighting the sinful desires of his own body. वो उसके शरीर में उठने वाले हर पापमय अभिलाषा से लड़कर करता है इसको. All kinds of wrong temptations, हर प्रकार की गलत लालसाओं से लड़ता है वो. But if he would fall for these temptations, he will be deemed disqualified to receive that imperishable reward. लेकिन अगर वो इन लालसाओं के सामने घुटने टेक देता है तो वो उस अविनाशी मुकुट के लिए निकम्मा ठहराया जाएगा. That is why he says in verse 26, the second part, and verse 27, उसलिए 26वें आयत के दूसरे भाग और 27वें आयत में क्या बोलता है? वो बोलता है मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. He says, I do not box as one beating in the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. The word disqualified means rejected after testing. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है निकम्मा ठहरना, उसका मतलब है किसी वस्तु को परखने के बाद उसको खारिज कर देना. See, God has already qualified us to receive this eternal inheritance. परमेश्वर ने हमें इसके लिए योग्य बनाया है. पर इस अनंत मिरास को पाने के लिए परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया है. In Colossians, just for a moment I'll go back to Colossians and see what's written there. कोलोसियों का पहला अध्याय और 12वां आयत देखिए वहां पर क्या लिखा है. Colossians chapter 1 and verse 12. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो. It says there that giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the light. So God has already qualified you. परमेश्वर ने हमें पहले से इसके योग्य बनाया है. But God tests us. लेकिन परमेश्वर हमें परखता है. By ordaining temptations in our lives, वो हमारे जीवनों में परीक्षाओं को ठहराता है. ताकि क्यों? So that we prove that we are qualified to receive the imperishable inheritance from Him. ताकि हम इस बात का सबूत दे पाए कि हम उस अविनाशी मुकुट के लिए तैयार हो चुके हैं. On the other hand, those who live consistently sinful lives prove that
They were not qualified by God to receive this imperishable inheritance. जो अपना जीवन पाप के साथ जीता है, वो इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर ने कभी उसको योग्य बनाया ही नहीं था. That is why in Ephesians, coming back to Ephesians chapter 5 and verse 5, उसीलिए एफेसियों के 5वें अध्याय 5वें आयत में पौलुस लिखता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं. It says, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Paul says that having preached to others, he does not want to be declared disqualified by God. पौलुस बोलता है, पूरी दुनिया को प्रचार कर लेने के बाद मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझे निकम्मा ठहराए. This comes at a very relevant time. ये बहुत ही सही समय पर हमारे जीवनों में आ रहा है. Recently, the most prominent Christian apologist of our times was found to be living a duplicitous life. हमने अभी कुछ ही दिनों पहले हमने जाना कि मसीही वक्ताओं में से सबसे बड़ा, जो हमारे समय का शायद सबसे बड़ा मसीही वक्ता था, वो एक दोहरा जीवन जीता था. He was defending Christianity all over the world, but his own personal life was in a mess. वो पूरी दुनिया में जाकर प्रचार करता था, लेकिन उसका जीवन पाप में फंसा हुआ था. It is not an opportunity for us to gloat over his life. ये मौका नहीं कि हम उसके अंदर दोष निकाले. We need to check our own lives. हमें हमारे जीवन को देखना है. When I read this, I was trying to look at my own life, my own weaknesses. मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं अपने जीवन को देख रहा था, परख रहा था. What are we watching on our mobile phones? हमारे मोबाइल फोनों में हम क्या देखते हैं? Are we watching vulgar pictures and videos on our mobile phones? अश्लील चित्रों को, वीडियो को हम हमारे मोबाइल पर देख रहे हैं? Do you have secret relationships with men and women other than your spouse? अपने जीवन साथी के अलावा किसी मनुष्य या स्त्री के साथ आपका संबंध है? Are we accountable to someone? क्या हम किसी के सामने हमारा कोई उत्तरदायित्व है? We might be doing ministry in the day, living sinful lives at night. सुबह सेवकाई करते हैं, रात को पाप का जीवन जीते हैं. If that's our life, we have been disqualified to receive the eternal inheritance. अगर हमारा जीवन ऐसा है, तो हम इस अनंत मिरास के लिए निकम्मे ठहरे चुके हैं. Those who are qualified for it enjoy that inheritance today. जो इस मिरास के लिए योग्य बनाए गए हैं, वो आज अपने जीवन में इस मिरास का अनुभव कर रहे हैं. कैसे? How? They live victorious over sin. वो आज पाप के ऊपर विजय को प्राप्त कर रहे हैं. Only such people will receive that inheritance. ऐसे लोग उस मिरास को प्राप्त करेंगे. Let's check our lives. आइए हम अपने जीवनों को देखें. Let us also pray for a spirit of wisdom and of revelation so that we can know the riches of God's glorious inheritance in the saints. हम एक ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम जान सके कि पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है. Let us also thank God who has qualified us to receive the inheritance in Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने हमें इस बड़े मिरास के लिए योग्य ठहराया है.